Hello students, so we are moving to the fifth unit of your syllabus. Again, this unit is divided into two parts. First part is AC voltage controller and second part is cycloconverter. So first we will be covering the fundamentals of AC voltage controller and all the topics under this particular heading, and then we will move to the cycloconverters. Okay, so let's start the basics of AC voltage controller. AC voltage controllers are thyristor-based devices which convert fixed alternating voltage directly to variable alternating voltage. फिक्स्ड वाला जो alternating voltage है उसको variable alternating voltage में convert करेगा without a change in the frequency. इंटरेस्टिंग है. कहने का ये मतलब है कि फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज ही रहेगी. इंडिया में फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है. मान लीजिए आपकी एसी की सप्लाई जो है वो आपने कहा 230 वोल्ट है. तो वो वेरिएबल का बोलने का मतलब है वो जैसे चॉपर क्या करता है, डीसी को वेरिएबल डीसी में कन्वर्ट करता है ना, वैसे ही साइक्लो कन्वर्टर एसी को वेरिएबल एसी में कन्वर्ट करता है. तो एक साइक्लो कन्वर्टर का एप्लीकेशन ही समझ लो आप इसको. आगे हम लोग पढ़ेंगे साइक्लो कन्वर्टर के बारे में. Some of the main applications of AC voltage controllers are for domestic and industrial heating, transformer tap changing, lighting control, speed control of single phase and three phase AC drives, and starting of induction motors. यहाँ इन सारे एप्लीकेशंस में एसी वोल्टेज कंट्रोलर यूज होता है. Earlier, the devices used for these applications were auto transformers, tap changing transformers, magnetic amplifiers, saturable reactors, etc. But these devices are now replaced by thyristor and triac based AC voltage controllers because of their high efficiency, flexibility and control, compact size and less maintenance. इन सारे रीजन की वजह से थायरिस्टर जो है उसने रिप्लेस किया बाकी सारी चीजों. ठीक है, क्यों? क्योंकि फ्लेक्सिबिलिटी रहती है कंट्रोल के लिए, साइज भी कॉम्पैक्ट रहता है, मेंटेनेंस लेस चाहिए, एफिशिएंसी ज्यादा होती है. ठीक है. AC voltage controllers are also adaptable for closed loop control systems. Since the AC voltage controllers are phase control devices, thyristors and triacs are line commutated, and as such no complex commutation circuitry is required in these controllers. तो थायरिस्टर बेस्ड जो सर्किट होंगे, ट्राइक बेस्ड जो सर्किट होंगे, उसमें कोई अलग से आपको कॉम्प्लेक्स सर्किटरी लगाने की जरूरत नहीं है कम्यूटेशन के लिए, मतलब उसको टर्न ऑफ करने के लिए. The main disadvantage of AC voltage controllers is the introduction of objectionable harmonics in the supply current and load voltage waveforms, particularly at reduced output voltage levels. अगर आपका आउटपुट वोल्टेज लेवल रिड्यूस्ड है, ऐसे भी आपके सप्लाई करंट में और लोड वोल्टेज में वेवफॉर्म में जो है अनवांटेड हार्मोनिक्स इंट्रोड्यूस होते हैं, और स्पेशली वो तब ज्यादा इंट्रोड्यूस होते हैं जब आपका आउटपुट वोल्टेज लेवल कम होता है. ठीक है. तो टाइप्स ऑफ एसी वोल्टेज कंट्रोलर्स. The power circuit diagram of a single phase half wave AC voltage controller using one thyristor is anti-parallel with an diode. ये देखो इसके साथ कनेक्टेड है. एंटी पैरेलल इसलिए क्योंकि दोनों का डायरेक्शन अलग अलग है. In this figure, R is taken as this R. R is taken as the load for simplicity. The output voltage and current waveforms obtained from this controller are shown in figure 9.1b. ये है वो फिगर, समझते हैं इसको. It is seen from this figure that positive half cycle is not identical with negative half cycle for both voltage and current waveforms. As a result, DC component is introduced in the supply and load circuits, which is undesirable. आइडेंटिकल नहीं होते हैं जो आपके वेवफॉर्म्स होते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव हाफ साइकिल के, है ना, और यही रीजन है. ये पॉजिटिव हाफ साइकिल, ये नेगेटिव हाफ साइकिल, पॉजिटिव हाफ साइकिल, नेगेटिव हाफ साइकिल हमेशा हर मूवमेंट पर आइडेंटिकल नहीं होते हैं. आप देख सकते हैं यहाँ से ये जो है फायरिंग यहाँ से स्टार्ट हो रही है अल्फा के बाद, और ये वेवफॉर्म ऐसा है और ये वेवफॉर्म पूरे सर्कल में. फिर जैसे ही अब नेक्स्ट पॉजिटिव में जाओगे फिर यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है. दोनों में है, ये लोड करंट में भी है और ये लोड वोल्टेज में भी. दिस इज वोल्टेज, दिस इज करंट. ठीक है, तो ये प्रॉब्लम है. तो ये डीसी जो है वो कंपोनेंट रिड्यूस हो जाता है सप्लाई में, जो हार्मोनिक्स हम लोग बोल भी रहे थे, और ये लोड सर्किट में भी इंट्रोड्यूस होता है जो कि अनडिजायरेबल है. 9.2a की बात करते हैं. ये वाला सर्किट shows the power circuit diagram of a single phase full wave AC voltage controller. ये full wave है, वो half wave. ठीक है, with two SCRs या with दो SCR लगा दी. वहां पे एक SCR और एक डायोड था कनेक्टेड इन एंटी पैरेलल.
फॉर दिस कंट्रोलर वोल्टेज एंड करंट वेवफॉर्म्स आर शोन इन फिगर, ये फिगर है जहाँ पे वोल्टेज और कंट्रोल वोल्टेज और करंट का वेवफॉर्म है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पॉजिटिव हाफ साइकिल इज आइडेंटिकल विद नेगेटिव हाफ साइकिल। देख लीजिए यहाँ पे ये पॉजिटिव हाफ साइकिल और यहाँ पे ये नेगेटिव, ये देखिए डिफरेंस यहाँ पे भी अल्फा का, और ये अल्फा का डिफरेंस आपको पाई प्लस अल्फा का डिफरेंस यहाँ पे भी दिख रहा है, साफ साफ क्लियरली दिख रहा है। यहाँ पे भी देखिए करंट में भी ये इतना डिफरेंस है यहाँ पे, और उतना ही डिफरेंस यहाँ पे आपको नेगेटिव हाफ साइकिल में देखने को मिल रहा है। वेयर एज यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे सिर्फ पॉजिटिव हाफ साइकिल में डिफरेंस है और नेगेटिव हाफ साइकिल में पूरा का पूरा वेवफॉर्म आपको एज इट इज दिखता है। ठीक है, तो ये जो है खासियत है फुल वेव कंट्रोलर की, है ना। तो ये हो गया आपका बेसिक इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट अपन चलते हैं इंटीग्रल साइकिल कंट्रोल में। ये बेसिक इंट्रोडक्शन था एसी वोल्टेज कंट्रोलर का, जो आपको टाइप्स पढ़ने हैं उसके अलग अलग, उसमें है इंटीग्रल साइकिल कंट्रोल। It is stated above that AC voltage controllers are phase controlled devices. The principle of phase control is illustrated in above figure जो हमने अभी डिस्कस किया। In these figures, the phase relationship between the start of load current and the supply voltage is controlled by varying the firing angle। जो अल्फा था फायरिंग एंगल, उसको वेरी करके हम कर सकते हैं। As the controlled output is AC, these are called phase controlled AC voltage controllers और AC voltage controllers, दोनों ही कह सकते हैं इसको। In industry, there are several applications in which mechanical time constant or thermal time constant is of the order of several seconds. For example, mechanical time constant for many of the speed control drives or thermal time constant for most of the heating loads is usually quite high. For such applications, almost no variation in speed or temperature will be noticed. For control is achieved by connecting the load to source for some on cycles and then disconnecting the load from for some off cycles. तो अलग अलग एप्लीकेशंस है, बहुत सारे अलग अलग तरीकों के एप्लीकेशंस है। तो यहाँ पे मैकेनिकल कांस्टेंट की बात की गई है और कुछ कुछ टेम्परेचर थर्मल कांस्टेंट्स की भी बात की गई है। तो उसको अचीव करने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए लोड को सोर्स से कभी कभी डिस्कनेक्ट कर देते हैं, कभी कभी कनेक्ट कर देते हैं, है ना। इस तरीके से कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, सो इंटीग्रल साइकिल कंट्रोल अभी क्या है, कंसिस्ट ऑफ स्विचिंग ऑन द सप्लाई टू लोड फॉर एन इंटीग्रल नंबर ऑफ साइकिल्स एंड देन स्विचिंग ऑफ द सप्लाई फॉर अ फर्दर नंबर ऑफ इंटीग्रल साइकिल्स। तो कुछ नंबर होंगे जैसे n इक्वल टू 3 4 5 साइकिल्स के लिए हम ऑन कर देंगे, फिर उतने साइकिल्स के लिए हम ऑफ कर देंगे। इस तरीके से हम जो है सप्लाई को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। आखिर टॉपिक ही है ना एसी वोल्टेज कंट्रोलर, तो उसको कंट्रोल करने के अलग अलग तरीके होंगे। तो यहाँ से वो बताने की कोशिश है कि इंटीग्रल वाले में क्या होता है। The principle of integral cycle control can be explained by referring to figure 9.2 for a single phase voltage controller with resistive load। ठीक है, ये 9.2 सॉरी, ये 9.2 सिंगल फेस वोल्टेज कंट्रोलर विद रेजिस्टिव लोड, यहां से रेफर करके उसको समझेंगे। फिगर 9.2 फॉर अ सिंगल फेस वोल्टेज कंट्रोलर विद रेजिस्टिव लोड, यस, गेट पल्सेस IG1 IG2 टर्न ऑन द थायरिस्टर T1 and T2 respectively at zero voltage crossing of the supply voltage. The source energizes the load for n equals to 3 cycle। अब यहाँ पे n की वैल्यू 3 ले ली गई है। ठीक है, 3 साइकिल के लिए ऑन ऑफ वाली बात होगी मेरे ख्याल से। When gate pulses are withdrawn, load remains off for m equals to 2 cycle। मतलब n equals to 3 के लिए ऑन रहेगा, m equals to 2 के लिए ऑफ रहेगा। In this manner, process of turn on and turn off is repeated for control of load power. By varying the number of n and m cycles, power delivered to the load can be regulated as desired। भाई इतने साइकिल के लिए मुझे ऑन रखना है, इतने साइकिल के लिए मुझे ऑफ रखना है, तो ऑन ऑफ वाला जो साइकिल है उसको मैं क्या कर लूंगा, कंट्रोल कर लूंगा, और उसको कंट्रोल करके ही मैं क्या कर लूंगा, अपने वोल्टेज को रेगुलेट कर लूंगा, अपने एसी वोल्टेज को कंट्रोल कर लूंगा। So the waveforms for source voltage Vs, gate pulses and output voltage V0 are shown in figure 9.3। तो यहाँ पे वो डायग्राम बताया गया वेवफॉर्म्स। ये तो आपका सप्लाई है, ये सप्लाई, ये सप्लाई, ये सप्लाई ओमेगा टी, ये Vm मैक्सिमम हो सकता है। यहाँ पे T1 ट्रिगर हुआ, यहाँ पे T2 ट्रिगर हुआ, T1 ट्रिगर हुआ, T2 ट्रिगर हुआ, T1 ट्रिगर हुआ, T2 अलग 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 अलग। ये IG1 मतलब गेट करंट फॉर T1, IG2 मतलब गेट करंट फॉर T2। ये I0 का डायग्राम है, ऑन फिर ये ऑफ, तो इतने साइकिल के लिए ऑन रहा, तो ये हो गया पहला, ये हो गया दूसरा साइकिल, ये हो गया तीसरा साइकिल। ये 2 पाई, यहाँ से 0 से पाई, पाई से 2 पाई, तो 2 पाई 4 पाई 6 पाई, 6 पाई तक ऑन था, फिर 8 पाई 6 पाई से 10 पाई तक ऑफ है यहाँ पे, और फिर यहाँ से क्या हो रहा है, ऑन हो रहा है। ठीक है, सो फॉर n इक्वल टू 3 एंड m इक्वल टू 2, ये देखो n इक्वल टू 3 तो 2 पाई 2 पाई 2 पाई तो 6 पाई हो गया, और m इक्वल टू 2 मतलब 2 पाई 4 पाई, तो 10 पाई तक यहाँ पे डायग्राम दिखाया गया आपको।
ठीक है, so power is delivered to the load for n cycles, no power is delivered to the load for m cycles. n में करना है, m में नहीं करना है. It is the average power in the load that is controlled. ठीक है, in literature integral cycle control is also known as on off control, burst firing, zero voltage switching, cycle selection और cycle syncopation, इस नाम से भी हम इसको समझते हैं. अब ये डेरिवेशन है, डेरिवेशन हम लोग को नहीं करना है, आप जो है सीधे सीधे आ जाएंगे इसके फाइनल वाले कंक्लूजन में. ये जो वैल्यू इसको निकाल के दिया गया है आईटीआर की वैल्यू की थायरिस्टर करंट कितना आता है, आप चाहें तो ये वैल्यू नोट कर सकते हैं. इंटीग्रल साइकिल कंट्रोल्स इंट्रोड्यूसेस लेस हार्मोनिक्स इनटू द सप्लाई सिस्टम. द सप्लाई अंडरटेकिंग्स देयरफॉर इंसिस्ट अपॉन द कंज्यूमर्स टू यूज इंटीग्रल साइकिल मेथड फॉर हीटिंग लोड्स एंड मोटर कंट्रोल ड्राइव्स. हम लोगों ने जब स्टार्ट किया ये टॉपिक तो डिसएडवांटेज क्या पढ़ा था हमने कि एसी वोल्टेज कंट्रोलर क्या करता है, हार्मोनिक्स इंट्रोड्यूस करता है अनवांटेड, बट इंटीग्रल साइकिल कंट्रोल उसको रिड्यूस करता है, उसको कम कर देता है. इतने हार्मोनिक्स इंट्रोड्यूस नहीं होते हैं लोड करंट में, लोड वोल्टेज में. ठीक है, AC voltage controllers with on-off control has specific applications as discussed above. Phase-controlled AC voltage controllers are, however, more common. As such, phase-controlled AC voltage controllers will only be discussed and analyzed in what follows. तो फेस कंट्रोल वाला जो हमारा टॉपिक है वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा. ये हो गया इंटीग्रल साइकिल वाला टॉपिक. ठीक है, सो दिस वे वी हैव इंट्रोड्यूस्ड द AC voltage controller or AC voltage regulator in today's lecture. And in next lecture, we will certainly study about the other types of AC voltage controllers. This is all for this particular lecture. Thank you for listening and watching.